Real talk, real impact, unfiltered and unapologetic. This is Femicon. Assalamu alaikum, everybody. This is Mavi Shakhtar. And I welcome you to another episode of Fem Icon. For those of you who don't know me, I'm a journalist, CEO of Fem Republica. I'm also a mental health coach and a counselor. Today we will be talking about how Pakistan has failed its women, or has it? You're welcome to disagree or agree. And that is what we will be talking about today. What we will be discussing, and your views, your comments, your questions are absolutely welcome. We have a very special guest that we will be discussing this with. You know what I want to do while we wait for her? Let me read a few things to you. This is an article from The Diplomat, 2025. It says over 2,000 cases of domestic violence, 500 cases of honor killings, and 5,000 cases of rape were reported across Pakistan in 2024. There was another article in Al Jazeera in 2021 written by Nida Kirmani, which said, the past few months have been harrowing for Pakistani women. And this was in 2021. So there hasn't been in recent years a time that that has been easy for Pakistani women. So it becomes difficult for our people, for our women, to decide what time it would be and what era it has been good for our women, for the people of Pakistan, for the women of Pakistan. So as we progress in all these areas, and as we say women are doing great in Pakistan, and we are doing better and better in Pakistan, and we have achieved so much. We even go as far as to say, oh, we've had a woman prime minister, and and that was way back when, right? But as time is passing, we don't seem to be, much hasn't changed in our day-to-day lives. Much hasn't changed in who we are as people. And when I say as people, I mean not just women, but I mean particularly men in our surroundings. And then when I say particularly men, then I have to go back and look at the women that are raising these men, right? So the Pakistan Demographic and Health Survey in 2017 and 2018, let me read to you what it says here. This is for women between 15 years and 49 years. 28% experience physical violence in our country. 28% experience physical violence. 6% sexual violence. 34% married women experience spousal abuse, physical, sexual, and or emotional abuse. So हमारी जो शादीशुदा ख़वातीन हैं, they experience abuse अपने husband से physical, sexual, and emotional. और इसमें आप economical abuse भी शामिल कर लें, because that has not been accounted for, but that's a very, very common thing that happens to women in Pakistan. Hi, Dua. Hi. Why I'm so dark?
Why? Why? Yeah, that is what I was wondering as well. You're very, very dark. Where? I think. It's a little better now. Hmm, are you? I shouldn't be. Well, yep. The topic is even darker. Yeah. So I guess it works out. All right. So Dua Mirza is a journalist, and you worked in the crime sector, right? Yeah. Okay. So can you give us a little bit more detail about um what you do? All right. So I am Dua Mirza, and by profession, by passion, I'm a journalist. I'm not an accidental journalist. It was a chosen one. And I've started my career from City 42. Then I joined Public News as a crime reporter, and it was really challenging for a woman choosing this because I'm Hafiz a Quran too. And it was like a stereotype that yes, women can't do this beat. But I have chosen this because I wanted to represent women in the journalism regarding crime, and I wanted to advocate women issues. So I joined 92 News then I worked with Daily Pakistan. I was hosting crime stories. Currently, I'm working with Geo News and I am covering courts, high court, and criminal justice system these days. And also, I'm the beat reporter for defense forces. Plus, I've represented Pakistan back in 2022 in World Youth Summit against tobacco control. I've represented Mm. Pakistan tourism and how Pakistan is safe for females in Sri Lanka back in 2024. Then I represented Pakistan in BRICS plus countries discussion last year in October in Russia. So in Pakistan, I make sure that I see every story with gender lens, and I feel that it like as my responsibility that whether I'm covering a social story, a soft story, a hard story, I make sure to represent a gender lens on that story. So yes, it's all about Mhm. women, and my name is Dua Mirza, and I'm every woman. All right. So here's I was just putting down some statistics in front of our audience. इसमें जो last part, which is most important, ये था कि 56% of women जो हैं, they don't seek help, and I'm sure that this number is higher, right? Um, so let's start with this point कि हमारे culture में, and I'm sure you know this better than me, कि हमारे culture में ये जो एक fear है of not getting help. Let's shed some light on that. कि इसकी क्या वजूहात हैं कि women don't seek help. एक्चुअली सिस्टम बड़ा पैरालाइज्ड है और सिस्टम वुमेन को एज जेंडर सपोर्ट नहीं करता। जो मुझे बात लगती है वो ये है कि हमारे लिए अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, कोई खातून हरास हो रही है उसका केस है, किसी को रोड पे चलते हुए सेफ्टी महसूस नहीं हो रही, लाइक यू जस्ट नेम एनी ऑफ द क्राइम दैट वुमेन इज फेसिंग स्पेसिफिकली, व्हाई दे डोंट सीक हेल्प बिकॉज़ दे ओनली नो वेयर टू रिपोर्ट इज 15 रीच टू अ पुलिस स्टेशन। और अगर हम पॉपुलेशन के इंक्रीज से पुलिस सिस्टम देखें तो ऑफ कोर्स आपका जो रेलेवेंट पुलिस स्टेशन है उसके पास मर्डर के केसेस भी हैं, उसके पास मुंशियात के केसेस भी हैं, उसके बाद दीगर बहुत सारे और काम हैं, तो दे विल नॉट बॉदर इफ यू आर गेटिंग हरास समवेयर। तो Hmm. मुझे लगता है कि वन ऑफ द वेरी मेजर एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज कि women आर नॉट अवेयर वेयर टू रिपोर्ट। जबकि हमारे पास लाहौर की अगर हम बात करें तो वुमेन पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर बहुत सारी खवातीन अप्रोच करती, वहाँ पर सारा स्टाफ फीमेल है, वहाँ की एसएचओ फीमेल है, उस जगह डीएसपी फीमेल है। खवातीन को ये नहीं पता होता, दे जस्ट रीच आउट द रेलेवेंट पुलिस स्टेशन। दूसरा, अब हमारे पास पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन है, जो फ्री लीगल एड देता है, जिनके पास अपनी हेल्पलाइन है, सेपरेट इंडिपेंडेंट। अगर आप वहाँ पर नॉक करें तो यू यू गेट टू नो के अच्छा बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं। इसके अलावा उम्बर्स पर्सन पंजाब है, जिसमें 60 डेज़ में दे आर बाउंड टू गिव योर डिसीजन। वो आपको वर्क Hmm. प्लेस हरासमेंट से लेकर आपके प्रॉपर्टी राइट्स जो स्पेशली Hmm. खवातीन की ओनरशिप में अगर उस पर कोई कब्जा हो गया, तो वो 60 डेज़ में दे आर बाउंड के उस पर वो फैसला दें। लेकिन चूँकि खवातीन को पता नहीं होता तो वो Hmm. इसलिए
मायूस हो जाती हैं रेलिवेंट पुलिस स्टेशन से और वो नहीं कर पाती। दूसरा मुझे अभी रिसेंटली 15 की हेल्पलाइन में भी खवातीन की स्पेशल एक हेल्पलाइन लॉन्च की गई है कि अगर आप 15 करते हैं और अगर आप 2 प्रेस करते हैं, तो वो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में डायरेक्टली लैंड होती है और फिर खातून ऑफिसर ही आपका मसला सुनती है और खातून ऑफिसर हुँ, आपको ला एक तो ये फैक्टर है, ये पता नहीं होता। हुँ, दूसरा बड़ा इग्नोर्ड फैक्टर कि अगर खातून ऑफिसर हो भी किसी भी सेक्टर में, तो आपको हुँ, फेस कर वो खातून ये समझ चुकी होती है कि यार खवातीन तो ये नॉर्मल फेस करती ही हैं। हुँ, तो बजाय बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज़ जो मैंने खवातीन ऑफिसर्स को जो डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग जगहों पर देखा है, वो बड़ा इनसेंसिटिव देखा है। आई एम रियली सॉरी टू से हुँ, बिकॉज़ दे आर इम्यून ऑफ द फैक्ट कि ऐसा होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी जेंडर पैरिटी रिपोर्ट 2023 जब आई थी, तो उसमें रिपोर्ट में ये इंडिकेटर्स जो थे कि हर चौथी खातून पंजाब में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। हुँ, और उसके स्टेटस में था कि वो खातून इसलिए पीटी गई क्योंकि उसने सालन में नमक ज़्यादा कर दिया। हुँ। उसने अपने हस्बैंड से उसकी रूटीन के बारे में पूछा। शी हैड कॉन्फ्लिक्ट अबाउट व्हाई हर हस्बैंड इज़ नॉट कमिंग ऑन टाइम। हाँ, वेयर वाज़ कि वो कहाँ था और क्यों नहीं आया घर, राइट। हुँ, तो पर जब हम वुमेन स्टाफ से पूछते हैं ना ऑफ द रिकॉर्ड कि ये क्या इंडिकेटर्स हैं, ये समझ नहीं आता, तो वो कहते हैं मैडम देखें कल्चर है, अब ये कोई हुँ, बातें हैं पूछने वाली। तो इसका मतलब ये है कि आपकी सोसाइटी में जो खवातीन उस जगह पर पहुंच गई हैं जिन्होंने खवातीन के इश्यूज को रिजॉल्व करना है, वो भी अभी इस हवाले से इतना रेडी नहीं है टू टॉक एंड टू एक्चुअली एड्रेस द इश्यूज। तो मुझे लगता है ये दो बहुत बड़े हुँ, फैक्टर हैं। खवातीन अगर हुदा ब्यूटी का आप सर्च कर सकती हैं, तो आई थिंक ये भी सर्च किया जा सकता है कि उनके लिए कोई और दरवाजे कौन से हो सकते हैं, कोई और पॉसिबल वेज कौन से हो सकते हैं, जिससे वो हेल्प ले सकती हैं। प्लस हमारे यहाँ ना जब ये कैंपेन डिज़ाइन हुई है ना कि किसी से बात करें, अपने अंदर की उस स्ट्रेस को किसी का शोल्डर तलाश करें, पीयर ग्रुप से शेयर करें, फ्रेंड सर्कल को ऐसा करें, तो अनफॉर्चुनेटली हमने ये नहीं सीखा कि किसको बताना है। हुँ। वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई समटाइम आप किसी ऐसे बंदे को बता देते हैं जो कि आपकी ही ट्रॉमा को, आपके ही बैगेज को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर देता है। सो उस Actually, सिचुएशन that is actually a very important point कि वही and it relates to your point you made before this कि हम हमारे जो ऑफिशियल चैनल्स भी जिनको हमें बताना है, जो हमें हेल्प करेंगे, वो भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं। और अगर हम यही बात करते हैं कि किसी से हेल्प ले लें या बोझ हल्का कर लें, वो भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। हमारी सोसाइटी ऐसे बिल्ट हुई हुई है कि यार तुम तो खामा-खाई में हंगामा खड़ा कर रही हो, ये तो छोटी-सी बात है, ये तो सभी के साथ होता है, बस छोड़ो, रहने दो, इसका क्यों इतना बड़ा तुम बना रही हो? अच्छा ठीक है, उसको इस तरह नहीं पसंद है तो मत पूछो, मियाँ को नहीं पसंद है तुम्हारा पूछना तो मत पूछो, क्यों तुम इतना वो कर रही हो? तो ये 2 चीज़ें आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ जैसे आपने कहा अभी कि लॉज़ तो हैं। वी हैव लॉज़ अगेंस्ट अंडर एज मैरिज, वी हैव लॉज़ अगेंस्ट यही इस तरह के जो क्राइम्स हैं कि ऑनर किलिंग्स हो गई और रेप है, इनहेरिटेंस के लॉज़ हैं एंड हर चीज़ के लॉज़ हैं। लेकिन उनको इम्प्लीमेंट हमारा जो इश्यू इस वक़्त है हमारी कंट्री में, उनकी इम्प्लीमेंटेशन का इश्यू है। कि बहुत हम ज़्यादा लोग सबसे बड़ा इश्यू ये है कि लॉज़ तो बने जा रहे हैं, बट देयर इज़ नो सिस्टम टू इम्प्लीमेंट दीज़ लॉज़। तो अब यहाँ पे हम बेसिकली अटके हुए हैं, बिल्कुल। राइट? तो यार वही अब इसके लिए आप जैसे हाँ, बोलें सॉरी। मुझे वजह इम्प्लीमेंटेशन की ये भी लगती है कि एक तो सिस्टम हुँ, इन इश्यूज को सीरियस लेने को राज़ी नहीं है हुँ, और दूसरी ये बात है कि हमारे पास पॉपुलेशन इंक्रीज़ इस कदर तेज़ी से है। अब वी इफ वी हुँ, काउंट लाइक 51% ऑफ द वुमेन, तो उनके हुँ, जो इश्यूज़ हैं वो ऑकवर्ड फिर उसी रेशियो से बढ़ते हैं। लेकिन अ, हमारे पास जो सिस्टम में वर्कफ़ोर्स है वो इतनी नहीं है, रिसोर्सेज़ नहीं है। फिर सिस्टम ऐसा डेवलप हो गया है कि फ़ॉलो अप करना बहुत मुश्किल है। हुँ, लाइक अगर कोई कोर्ट में एक केस चल रहा है तो आपकी नस्लें जवान हो जाती हैं और जो शख्स जो खातून केस लड़ रही है अक्सर वो दुनिया से चली जाती है। हुँ, लेकिन
होता। तो वो जो बिल्कुल। डिले है प्रोसेस में और जो वो फ़ॉलो अप है, फिर जो सिस्टम के अंदर जाके हैरेस होना है, इवन इन द बिल्कुल। आज 2025 में you can't file a case of harassment because you actually get scared of the investigation even carried by a female police officer. हुँ। आपसे जिस तरह के सवाल किए जाते हैं, जिस तरह की बातें पूछी जाती हैं, जिस तरह की पर्सनल that it's triggering even worse. Um, before we go to आपसे जैसे आपने बात की I want to talk about workplace harassment क्योंकि you told me कि you actively work in that arena और ये this is what you want to do. Uh, I read somewhere इसी की research के लिए कि they were saying कि attitudes towards gender bias crimes is changing कि इसके towards जो है वो decline हो रहा है. It's getting better. I don't see that, right? लेकिन आपका क्या view है इस बारे में कि क्या हमारे views generally I feel like she's frozen. क्योंकि जैसा कि हमने बात की कि बहुत सारे जो जिन जिन चीज़ों को जिन एक्ट्स को जनरली वायलेंट क्राइम्स कंसिडर किया जाता है और जनरली औरतें कंसिडर करती हैं दोज थिंग्स आर नॉर्मलाइज्ड जिसको हम इसे शुरू में ओह शी इज ओके शी ब्रोक ऑफ फ्रॉम अस लेट्स वेट फॉर हर टू कम बैक जैसे शुरू में बात की कि इकोनॉमिकल अब्यूज़ इज़ आल्सो अब्यूज़ कि आप पैसे बीवी को नहीं दे रहे हैं या उसको तंग करके दे रहे हैं या जितना बजट है उतना नहीं दे रहे एंड देन शी हैज़ टू आस्क यू अगेन एंड अगेन देयर इज़ मैनी वेज़ ज़्यादा हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम डिफरेंट डायरेक्शन में बात कर रहे हैं वी जस्ट वांट टू नो कि ये इश्यूज़ क्यों हो रहे हैं उनका सॉल्यूशन क्या है बट ये जो इन इन इश्यूज़ के बारे में वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये जो इश्यूज़ हमारे हैं इनको हमारे कल्चर में इनको इनको अब्यूज़ समझा नहीं जाता अगर जैसे भी बात हो ही रही थी कि अगर ये अब्यूज़ हो रहा है अगर कोई मियाँ पैसे देने में तंग कर रहा है कोई मर्द बीवी को या बीवी को या हाय मारूख yeah we're just gonna wait for what's her yeah for her to reconnect अगर मियाँ तंग कर रहा है पैसे देने में तो this is not considered abuse uh, she is going to have to Maruk, she's just going to have to reconnect because if I disconnect then this whole I don't see her Maruk I cannot see Doa. Tell her to sign out and then sign back in. I cannot see her. So इस तरह की सिचुएशन में यही समझा जाता है कि मियाँ है पैसे नहीं होंगे कोई मसला होगा बस तुम सब्र से गुजारा कर लो. So the things that are so the things that we are looking at and the things that we are as women and as a whole as a society as a global um you know global society we are looking at as abuse, as emotional, turmoil. Everybody else looks at it and thinks of it as in our culture. People look at it and think of it as um, मियाँ है उसकी बात सुन लो कोई बात नहीं ऐसे हो जाता है. Let me see how we can get her back. I'm sorry for the dead air.
So so the question that we were asking, Dua, was, have attitudes changed? Have attitudes d- towards violence against women changed? Because reports everywhere say that they have declined. Reports everywhere say that people recognize it widely, that हमारा के हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में अब अवेयरनेस हो गई है। अब लोगों को पता है कि ये क्या चीज़ है। अब लोगों को पता है कि औरतों पे ज़ुल्म नहीं करना चाहिए, कि औरतों को इक्वल राइट्स देने चाहिए, कि औरतों के साथ बेहतर सलूक करना चाहिए, एंड ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स दैट कम विद इट। Now, this is a question that we need to answer as Pakistanis, and even as women, and even as men that are around us, right? कि is that true? क्या वाकई में इसमें इस ये अवेयरनेस बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? एंड देन वही क्वेश्चन आ जाता है कि जो इमोशनल अब्यूज़ है, बहुत सारे इस तरह के अब्यूज़ हैं जो सामने नहीं आते। हमें शायद इस चीज़ की अवेयरनेस बढ़ गई है कि कोई अगर अपनी बीवी को मार रहा है, या कोई बाप अपने बच्चों के पे चीख रहा है खड़े होके, तो वो नो, दिस इज़ नॉट ओके। आई मीन, आई एम जस्ट नाउ टॉकिंग अबाउट जनरल वायलेंस। हमें शायद ये बात भी बुरी लगे, लेकिन हमें इस बात का कि सेफ्टी, व्हाट इज़ अ सेफ स्पेस, कि हमें औरतों को सेफ स्पेस देने की ज़रूरत है। हमें उनको ये एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि दे कैन एंटर, किसी जगह में दे कैन एंटर, एंड दे डोंट हैव टू वरी अबाउट कि वो किधर हैं, उन्हें कौन, वो कहाँ बैठी हैं, उनके साथ कौन बैठा है, उनको कोई तंग ना करे, उनको कोई हरास ना करे। ये चीज़, इस चीज़ का एहसास अगर क्या हमारे मर्दों को, क्या हमारी कौम को इस चीज़ का एहसास हुआ है? दैट इज़ व्हाट्स इम्पोर्टेंट टू नोट, एंड आई फील कि वो एहसास अभी हमारे मुल्क में अभी नहीं आया, पाकिस्तानियों में अभी नहीं आया। एंड द रीज़न कि ये जो केसेस हैं जो हमारे सामने इतने ज़्यादा आ रहे हैं, वो हमारे नज़रों से इतने गुज़र रहे हैं, उसकी वजह ये नहीं है कि हमारे अंदर रियलाइजेशन ज़्यादा आ गई है। इट डज़ नॉट, एब्सोल्युटली डज़ नॉट मीन दैट। So I've added her again, but I still don't see her. Though, can you send the request one more time? I don't see you. Agar, if I see you in the list, I would send you request, लेकिन मुझे अब नज़र नहीं आ रही उधर। So जो प्रोटेक्ट होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो प्रोटेक्ट होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अभी भी औरतों पर है। अभी भी औरतों से ही डिमांड की जाती है कि कीप योरसेल्फ covered, keep yourself away from men, keep yourself, bottled up, बाहर मत निकलना इतने बजे के बाद, इस माहौल में नहीं जाना, इस जगह पे नहीं जाना। अभी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्दों पे नहीं डाली जाती और मर्दों पे आती भी नहीं है। अभी भी, जैसे दुआ ने बात की, कि अभी भी यही माहौल है कि अगर आप औरतों से भी बात कर रहे हैं, औरतों को भी समझा रहे हैं, और औरतों को भी अपनी मुश्किल बता रहे हैं, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल ईदर प्ले इट डाउन, या तो वो ये करेंगी कि छोड़ो यार, बस ऐसे होता है, यही यही माहौल है, इसी में इसी तरह करते हैं मर्द, या वो ये करेंगी, या वो आपको बिल्कुल ही डिसमिस कर देंगी। इट्स वेरी रेयर कि आपकी जो नीड्स हैं, आप जो एक्चुअल इशू है, वो प्रॉपरली एड्रेस होगा। सो वी आर नॉट गेटिंग एनी बेटर, we are just seeing more of it because of news being everywhere, because of social media, because of everything that is in front of us. और अब जो चीज़ एक एडेड हो गई है, जिसकी हम बात करना चाह रहे थे दुआ के साथ, विच इज़ वर्क प्लेस हरासमेंट। एंड वर्क प्लेस हरासमेंट एक तो सेक्शुअल हरासमेंट होती है, जो कि आपकी ज़्यादातर, एज वी ऑल नो, कि it's it's by somebody that we know. Okay, so let me try to add you though. I see her now.
Yeah. Okay. There you go. Finally. One more time. All right. So let's go to I just wanted to talk about workplace harassment because I was talking about this phenomena कि जो जो और sexual harassment है, that is sexual harassment mostly with somebody that you know, and जो street harassment है उसका तो you know that's you're feeling unsafe all the time. Sexual harassment is such a subtle thing because sometimes the victim doesn't even know it's happening, right? So how do you go about first of all identifying that you're being sexually harassed at workplace, and then how do you protect yourself from it? Okay. So actually, when we talk about harassment, the definition is like really simple. It's about if you're feeling uncomfortable in any environment, that's harassment. But it has like 7 stages. If someone is staring at you, if they are doing some sexual jokes with you, if they are doing some random jokes with you, so you need to identify your red flags around you. और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे यहाँ जब ख़वातीन इवन अभी रिसेंटली सरा यूसुफ का केस भी हुआ तो मैं उसमें भी ये बार बार कहती रही कि आपने नहीं नहीं कहना होता वर्क प्लेस पर इफ़ योर बॉस इज मेकिंग यू फील अनकंफर्टेबल तो you need to realize कि when to say no and how to say no. The art of saying no actually protects you from Yeah. getting sexually or physically or emotionally harassed. Right. हमारे यहाँ ख़वातीन में सबसे बड़ा मसला ये है कि या तो वो बहुत ओपन एंड शट केस की तरह इसको Hmm. डायरेक्ट नो कह देती हैं एंड दे हिट द मेल ईगो और देयर बॉस ईगो या Hmm. फिर दे वेट एंड दे रिमेन साइलेंट अंटिल द थिंग्स गोज लाइक वर्स सीरियसली बहुत सारे ऐसे केसेस हमें सुनने को मिलते हैं जिसमें वो बच्ची बताती है कि अब शुरू में तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था आई वाज फीलिंग अनकंफर्टेबल एंड ही वाज टचिंग एट Hmm. माय शोल्डर एंड in the group picture he was holding my back and then one day he just grabbed me and I didn't know what Hmm. happened. So आपको शुरू में ये रियलाइज करना होता है कि आपकी बाउंड्री क्या है आपने जो Hmm. अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन की एक डेफिनेशन बना रखी है बिकॉज इट वेरीज कि आपका Hmm. बैकग्राउंड क्या है दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है इसमें वो ये है कि हमारे यहाँ जो ख़वातीन की बड़ी तादाद है जो ऑफिसेज में काम कर रही है ऑफ कोर्स फाइनेंशियल क्रंच का पूरी दुनिया को सामना और पाकिस्तान में ज़्यादा है छोटी Hmm. छोटी बच्चियां जब हॉस्टल में पेरीफ्री से यहाँ पर आती हैं तो दे फेस चैलेंजेस एंड दे फाइंड सम जॉब्स Hmm. लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे फॉरगेट कि उन्होंने अपना पर्सनल सिक्योरिटी और पर्सनल सेफ्टी का मैकेनिज्म कैसे बनाना है किससे Hmm. गाइडेंस लेनी है एंड एंड दे टेक इट लाइक okay if they are going like by 9 a.m. and they're coming back by 6 p.m. and they are feeling like okay they are getting salary on time they don't realize कि अगर उनको कोई एक्स्ट्रा पे कर रहा है अगर वो किसी जल्दी प्रमोशन उनको मिल गई है तो उसके पीछे भी कोई ऐसी वजह हो सकती है जो एक हनी ट्रैप जिसे हम Hmm. कहते हैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हनी ट्रैप सिर्फ हम ये कहते हैं कि अगर अगर किसी खातून ने किसी को अपने ट्रैप में फंसा लिया तो वो हनी ट्रैप एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट खवातीन Hmm. भी इसका शिकार होती है वो भी इसका विक्टिम होती हैं और वो किसी सर्च के नतीजे में आ सकता है या वो किसी ऑफर के नतीजे में आ सकता है फॉर एग्जाम्पल बीइंग लिविंग इन डिजिटल वर्ल्ड जो रील्स बनाने के लिए अगर आपको 20,000 मिल रहे हैं शाउट आउट देने के आपको 50,000 रुपए मिल Hmm. रहे हैं कोई कैंपेन करने के आपको पैसे मिल रहे हैं तो यू नेवर नो कि अगर आप विदाउट सिक्योरिटी माइंडसेट फार्म हाउस पे शूट करने के लिए जा रहे हैं तो आई डोंट गारंटी यू दैट यू विल कम बैक सेफ Hmm. or if you are coming back safe but you are feeling uncomfortable 5 to 10 minutes at that place and you are going back again without a security plan that's a big red flag you need to understand that one Hmm. day you will be the victim of sexual harassment and you will be not be even able to report it because it's too late दूसरा आपके प्लेटफॉर्म पे Hmm. मैं एक And बात just बहुत what जरूरी just करना wanted to चाहती no, you continue, but I just wanted to say one thing कि वैसे तो when you said it's too late वैसे तो I believe कि obviously uh, legally it should not be too late, but जिस तरह से हमारा system है it it's too late in the sense कि you know of course पहले क्यों नहीं courts and बताया everybody हाँ will say कि पहले क्यों नहीं बताया, but uh,
in a practical sense, of course, nobody should be able to say that to you. कि जब भी बता दिया, जब भी अंदाज़ा हो गया, you should be able to tell them. But you're right in that sense कि अगर आपने उसको continue होने दिया तो there will be a point जब आपको ये कहा जाएगा कि पहले क्यों नहीं बताया. I'm sorry. Go on. No. It's a very valid point. I just want to share one very important tip. आपके platform से to all the mothers watching me, to all the young girls watching me. खुदा न खास्ता किसी भी बच्ची के साथ कोई रेप हो जाता है अगर, तो सम टाइम यू गेट फ्रीज्ड, या अगर आप बहुत हिम्मत करके अपनी वालदा को भी बता दें, तो उनके ऊपर एक सोसाइटी का प्रेशर है, फिर अगर वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ये प्रेशर है कि नहीं बताना। अगर वो फैमिली में से किसी जानने वाले ने किया तो उसकी हिकमत अमली बनाने में कि हाउ टू रिपोर्ट इट, और अप्रोच करना भी है सिस्टम को कि नहीं करना, ये इस बात को दबाना है, क्योंकि इज्जत हमारे यहाँ सिर्फ खवातीन के कंधों ऊपर होती है। बिल्कुल. तो उस सीन में जब हम ये देखते हैं कि जब कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जिस वक़्त रिपोर्ट किया जा सकता है, तब तक आपके पास एविडेंस नहीं होता। कि एविडेंस ज़ाया हो चुका होता है, फोरेंसिक के लिए कुछ चीज़ बिल्कुल. जा नहीं पाती, तो आप लीगल सपोर्ट नहीं ले पाते। तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि बच्ची ने जो भी कपड़े पहने हैं, उसको प्रिज़र्व कर लिया जाए, एज़ इट इज़। सो 6 मंथ्स तक आपका फोरेंसिक एविडेंस है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो जस्ट टेक अ टॉवल और अ पीस ऑफ क्लॉथ, साफ कपड़ा लेकर उसको अपनी पूरी बॉडी पे एक दफा रब कर ले, और फिर उस पीस ऑफ क्लॉथ को, उस टॉवल को आप स्टोर कर लें एज एन एविडेंस, ताकि अगर खुदा न खास्ता 6 महीने भी गुजर गए हैं, यू कैन प्रेजेंट दैट टॉवल एंड द पीस ऑफ क्लॉथ इन फ्रंट ऑफ कोर्ट और इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फॉर द फोरेंसिक एविडेंस। ये लोगों को नहीं पता होता, जिसकी वजह से एविडेंस ज़ाया हो जाता है, और सिचुएशन अगर बेहतर हो भी जाए, आपके हक में भी हो जाए, तो चूँकि एविडेंस नहीं होता, इसलिए लीगली आप प्रोसीड नहीं कर कोई पाते। हाँ, कुछ हो नहीं पाता आगे. Right. No, this is actually very important because हमारे यहाँ यही होता है कि शुरू में हिम्मत नहीं होती, पेरेंट्स की भी हिम्मत नहीं होती, और लड़कियों की भी sometimes they can't come forward and speak. तो later on अगर ऐसे हो तो you should definitely preserve the evidence as much as you can. So you were talking about जब हमारी बात हुई तो you said कि you want औरतों की mind की safety, to preserve their mind in a safe space. And that's what I was जब थोड़ा सा कट ऑफ होता आपके साथ, I was talking about कि हमें जो हम डिक्लाइन की बात कर रहे थे कि ये कॉन्सेप्ट हो गया है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस की अवेयरनेस हो रही है एंड व्हाट नॉट। तो आई वाज सेइंग कि ये अवेयरनेस जो है ये बहुत ही सुपरफिशियल है। जो असल में अवेयरनेस होगी वो इस तरह से आएगी कि औरत बाहर निकले तो वी शुड फील सेफ, राइट? एग्ज़ैक्ट हमें और मर्दों को ये चाहिए कि हमें सेफ फील कराएं। तो वो तो आई डोंट नो व्हेन दैट्स गोइंग टू हैपन, दैट्स फार अवे फ्रॉम फ्रॉम अभी तक तो कोई चांसेस नहीं लग लग रहे उसके। तो राइट। व्हाट इज योर एम कि औरतों को किस तरह से यू वांट टू प्रिपेयर वुमेन के वी फील सेफ outside of the house or wherever, just in ओके। public. So this is very important. Unfortunately, whenever anything gets reported, like Zainab murder case or Zainab rape case or many other cases like that, so हमारी सोसाइटी में एक डिबेट स्टार्ट होती है कि बच्चियों को मार्शल आर्ट सिखा दे, और ताकि वो बहुत सिक्योर हो। एक्चुअली हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि मर्दों का फिजिकल स्ट्रक्चर और खातून के फिजिकल स्ट्रक्चर में फ़र्क है, पावर में फ़र्क है। तो इट इज़ And that is very important. Huh? That's very important to know. Yes. दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप लड़ सकें। दिस इज़ नॉट Hmm. पॉसिबल एंड इट्स बाय नेचर। एंड सबसे बड़ा ये स्कैम है टू से कि आपको कोई हरास करे तो आपको वहाँ पर लड़ना है। एक्चुअली Hmm. सिक्योरिटी आपको ये सिखाती है कि हाउ टू डू अ सेफ एग्जिट फ्रॉम द किल ज़ोन, और Hmm. सबसे ज़्यादा बहादुर वही जीता हुआ भी वही होता है जो उस किल ज़ोन से सेफली एग्जिट कर जाता है। जो वहाँ पर रुकता है, वो ज़्यादा रिस्क और डेंजर में होता है। So, while talking about the self defense system, we need to understand कि हमें ना तो पेपर स्प्रे देने की ज़रूरत है बच्चियों को, ना ही वेल डेकोरेटेड रूम्स में उनको मार्शल आर्ट्स की 21 टेक्निक सिखाने की ज़रूरत है कि किसी का बाजू कैसे मरोड़ना है, किसी को थप्पड़ कैसे मारना है। हमने ये देखा
कि जब ये कैंपेन शुरू हुई थी और बच्चियों ने अपने पास, कॉलेज की बच्चियों ने अपने पास पेपर स्प्रे रखना शुरू किया, तो जब उनके साथ बस स्टॉप पे हरासमेंट हुई, कोई शख्स आके अगर उनकी वीडियो बना रहा है, तो उनके हाथ काँप रहे थे व्हाइल हुँ, टेकिंग आउट पेपर स्प्रे फ्रॉम देयर बैग बिकॉज़ दे वर नॉट रेडी एंड दे वर नॉट हुँ, हैविंग द इनर कॉन्फिडेंस एंड दे वर नॉट हैविंग द सिक्योरिटी माइंडसेट। तो सिक्योरिटी माइंडसेट बनाने की ज़रूरत है कि प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे लेने हैं। इफ़ यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ योर होम, आप ये देख लें कि सिक्योरिटी केसेस में जब आप हम केस स्टडी करते हैं तो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स कि रॉबरी, हरासमेंट, पर्स स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग या किसी का आपको टच करना, वो आपके घर की बाउंड्री में होता है। हुँ, आप घर से बाहर निकले, मोबाइल स्नैच हो गया। आप बस घर के करीब ही थे, घर की गली में थे, कोई शख्स आया, उसने आपको टच किया और वो चला गया। ये हुँ, क्यों होता है? क्योंकि जब हम अपने घर के सराउंडिंग में पहुँचते हैं, वी फील आवरसेल्व्स वेरी सेफ राइट। नेचुरली, बिकॉज़ वी आर नॉट लाइक अटेंटिव, और हम कहते हैं कि बस ये तो घर आ गया, साथ वाली गली का घर है, हुँ, बस। तो वी आर फीलिंग होम। लेट डाउन योर बट गार्ड। अटैक हुँ, जो होता है वो उसका फ़ायदा उठाता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़ोन होते हैं, ऑरेंज ज़ोन, व्हाइट ज़ोन, येलो ज़ोन, और फिर जब आप ब्लू ज़ोन से होते हुए रेड ज़ोन में आ जाते हैं, तब आप कुछ नहीं कर सकते। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने रेड ज़ोन में जाने से पहले-पहले ये देखना है कि जिस गली से आप आते हैं, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक रास्ते से वापस घर मत आएँ। चेंज योर रूट हुँ, एवरी सेकंड डे। एक ही रास्ते से मत हुँ, आएँ, एक ही टाइम पे मत आएँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नोबडी शुड नो योर लोकेशन। हमारा जो इंस्टाग्राम का ज़माना है, तो उसमें चेक इन हम बहुत जल्दी कर देते हैं। इफ यू हुँ, आर हैविंग डिनर, हैविंग लंच समवेयर, तो इट्स अ वेरी सिक्योरिटी टिप इम्पोर्टेंट कि आप कहीं भी बैठे हुए उस वक़्त चेक इन मत करें। व्हेन यू रीच होम तब चेक इन कर लें। इफ यू आर नॉट देयर तब चेक इन कर लें, ताकि कोई हुँ, आपको फॉलो ना कर रहा हो। प्लस अपनी लोकेशन हम बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। अपने मोबाइल की लोकेशन हर वक़्त ऑन मत रखें, बिकॉज़ इट इज़ हुँ, सो ईज़ी, राइट? जस्ट इफ आई स्पेंड लाइक 3000 रुपीज़, सो आई कैन गेट योर लोकेशन आपके हुँ, मोबाइल फ़ोन ऑफ से। कोर्स। इट्स वेरी, तो अपने हुँ, मोबाइल की लोकेशन ऑन मत रखें। जब जहाँ भी आप जा रहे हैं, प्लीज़ चेक योर एनवायरनमेंट कि व्हाट्स गोइंग ऑन। अगर कोई एक बाइक आपको कंटिन्यूअसली 1-2 दिन नज़र आ रही है, तो आप उस पर ध्यान रखें। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे लाहौर में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप दोपहर के वक़्त भी सड़क पर 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल सकते, बिकॉज़ व्हेन यू स्टार्ट वॉकिंग, तो कोई गाड़ी आके रुकेगी और कहेगी बैठ जाएँ। एक बाइक आके रुकेगी, हुँ, वो कहेगा बैठ जाएँ, और ही कीप्स फॉलोइंग यू एंड सम टाइम ही हुँ, कीप्स फॉलोइंग योर होम, एंड इफ ही गेट्स टू नो योर होम एंड यू आर अवॉइडिंग दैट, तो सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अवॉइड नहीं करना, मैनेज करना है। हुँ, You just stop there, do 1 5 and ask them if somebody is following you and somebody is harassing you. हुँ, अब ये अनटोल्ड एंड अनडॉक्यूमेंटेड क्राइम्स है, बिकॉज़ हमने देखा है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान हर दूसरी औरत किसी बाज़ार में जाते हुए या किसी मोहल्ले में जाते हुए ज़रूर इस चीज़ का शिकार होती है। कोई शख्स आता है और वो आपकी कमर पे हाथ लगा जाता है। कोई शख्स हुँ, आता है, तो बहुत आता है, हाँ। बहुत होता है। अब ये आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज़ व्हेन यू रीच टू पुलिस स्टेशन, दे से व्हाट इज़ द एविडेंस? एंड यू डोंट हैव एविडेंस, No, oh there's Sam, there's no evidence. if you start reporting it, if you start talking about it, I think that will become an issue कि ये इश्यू एग्ज़िस्ट करता है। अभी चूँकि हम रिपोर्ट नहीं कर रहे होते 15 पे उस तरह, और हमारी आदत हुँ, नहीं है। 15 इज़ फॉर द पीपल, प्लीज़ यूज़ इट। मैं हमेशा ख़वातीन को कहती हूँ कि अब तो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है, तो प्लीज़ हुँ, 15 करें, 2 प्रेस करें, खातून को लाज़मी बताएँ कि कोई शख्स आपको फ़ॉलो कर रही है, आपकी उसका रास्ता। मैं तो ऐसा भी अक्सर किया करती थी कि इफ़ आई एम रीचिंग बैक टू होम एंड इट्स लेट एट नाइट, सो आई यूज्ड टू डू 15 एंड आई यूज्ड टू कॉल कि आई एम फीलिंग अनसेफ, प्लीज़ मुझे घर छोड़ाएँ। So the dolphin हुँ, force used to come and they used to follow me and they used to drop me at home because I was feeling unsafe, and that's quite राइट, fair. अब फिर लोगों को ये नहीं पता कि पुलिस के अलावा जो ये डॉल्फिन फोर्स बनाई हुई है, एक्चुअली दिस फोर्स इज फॉर द पीपल सिक्योरिटी, इज फॉर द पीपल फ्रेंडशिप एंड फॉर द पीपल टू रियलाइज कि पुलिस इज फॉर यू। द सिस्टम हुँ, इज नॉट आइडियल, बट लेट्स यूज इट वट एवर इज अवेलेबल। हुँ, फॉर एग्जाम्पल, शायद आपको नहीं पता होगा और सुनने वालों को भी नहीं पता होगा कि डॉल्फिन, अगर आपकी बाइक में, आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, तो यू कैन आस्क द डॉल्फिन फोर्स टू हुँ, गेट यू अ पेट्रोल, because this is the force that bridge you and police. पुलिस को पहुँचने हुँ, में जितनी लगती है, डॉल्फिन फोर्स वहाँ पर पहुँच कर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है उस क्राइम सीन पे जहाँ पर आप अफेक्टेड हुए हैं।
तो आप अपनी सिक्योरिटी के लिए उनको बुला सकते हैं एंड इट हार्डली टेक्स लाइक अ सेकंड टू डू Mhm. 15। इसके अलावा वुमेन सेफ्टी ऐप है जो पंजाब सेफ्टी अथॉरिटीज़ के तहत काम करती है। आप वो अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, आपके पास बैलेंस नहीं है, इट हैज़ फीचर्स कि आप डायरेक्टली अपने इश्यू Mm. को रिपोर्ट कर सकते हैं, आप उनके साथ कॉल पे रह सकते हैं। ये भी नहीं है तो पैनिक बटन्स तमाम लाहौर के 150 मकामात पर इंस्टॉल किए गए हैं, जिसमें तमाम पब्लिक पॉइंट्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है। आप जस्ट एक बटन दबाते हैं तो आप अंडर द सर्विलेंस ऑफ कैमरा आ जाते हैं। तो इफ यू आर Mm. फीलिंग अनसेफ या आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है तो आप उस जगह पे खड़े रहते हैं तो द पुलिस ऑफिसर इज सीइंग यू फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स एंड दे कुड नो कि Mhm. आप इधर खड़े हैं एंड दे विल सेंड द पुलिस। तो दैट विल बिकम योर सेफ स्पॉट बिकॉज़ यू आर इन द Mhm. कस्टडी ऑफ वर्चुअल पुलिस। तो दिस इज़ वेरी Mhm. इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली एनालाइज़ कि आप कौन-सा रास्ता ले रहे हैं, क्या उसकी सिक्योरिटी क्लीयरेंस आपके पास मौजूद है? प्लस जो हम हमारे यहाँ अभी लाहौर इज़ अ वेरी हैपनिंग सिटी और यहाँ पर बहुत Mhm. सारे कॉन्सर्ट्स होना शुरू हो जाएँगे अभी और फिर वो हम रात को Mhm. लेट भी आ रहे होते हैं 11-12 बजे एंड वी यूज़ इन ड्राइव एंड उबर और मे बी Mhm. सम अदर ऐप्स। वो बहुत आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। हमने ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हुए सुने जहाँ पर एक ड्राइवर ने किसी खातून को पिक किया एंड इफ इट इज़ नाइट तो जैसे ही अंधेरा होता है तो हमारे यहाँ मर्दों के ज़हन में फ़ौरन मसल ऑफ मेन आता है कि दे कैन Mhm. द मैन और दे कैन टेक द चार्ज ओवर वुमेन एंड इफ शी इज़ लाइक गेटिंग होम एट 11 और 12 तो शी मस्ट बी लिबरल, शी मस्ट बी लाइक वेरी मॉडर्न। तो दे ट्राई टू ट्रैप देम। अगर वो ट्रैप नहीं Mhm. कर पाते तो अनफॉर्चुनेटली दे अनक्लोथ देमसेल्व्स एंड इट्स वेरी Mhm. कॉमन। So you get freeze because you don't expect it, and definitely Mhm. you're, nobody have exposure to see a naked man for no Mhm. reason. So you need to check if you are going to a place that is not rushy. Are you taking the right measure? Please reach home at the time where you feel safe, or if you Mhm. have like enough security mindset of, or if you are consulting with someone, please be in contact. If you are coming late home, please be in contact with your relatives, with your. But please, please, please don't tell your traumas. Don't tell if you are fearful to drive in a rushy place. Don't tell if you get freeze to your relatives, to your friends, to your peer group, because they can actually, if they have any conflict with you, so they can use it against you. तो बड़ा इम्पोर्टेंट Mhm. ये है कि अपने बहन-भाइयों को बता दें, अपने माँ-बाप को बता दें, उन पर जिन पर आप ट्रस्ट कर जिन सकते पे हैं। अपन ट्रस्ट हो, कॉन्फिडेंस हो, ऑफ कोर्स। छूट हुआ और अगर किसी बहन को ये पता था कि छोटी बहन जल्दी डर जाती है, तो दे ट्राइड टू ट्रॉमाटाइज़ हर। तो इसलिए हुँ। ये बड़ा ज़रूरी है आजकल के दौर में कि आप अपने हस्बैंड पर ट्रस्ट करना भी इज़ द होल आर्ट। तो यू शुड बी लाइक मेक इट द हुँ। सर्कल जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें। प्लीज़ शेयर योर इन्फॉर्मेशन एंड एवरीवन डिज़र्व्स टू बी हुँ। सेफ। सो द क्वेश्चन इज़ कि हम इस तरह सेफ्टी की बात तो कर रहे हैं, बट एज़ अ कंट्री सिर्फ़ गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, लोगों की बात भी हो रही है। जैसे हम बात करें फैमिली की एंड फ्रेंड्स एंड इस जनरली सबकी बात हो रही है। देयर आर मैनी एरियाज़, इसमें छोटे-छोटे बहुत सारे गैप के एरियाज़ हैं जिनको किसी तरह से भी किसी सेक्शन में डाला नहीं चाहिए। जैसे जैसे मैरिज की बात है, उस पे कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं हो सकता। वो तो बीवी बताएगी कि मियाँ क्या कर रहा है और बीवी ही उस पे कंट्रोल कर सकती है या दूसरों से हेल्प ले सकती है या नहीं ले सकती। अब जैसे सिंध में, कराची में, आई एम श्योर यू नो कि कम से कम अबव 100, 120, 150 बंगाली औरतों की ट्रैफिकिंग होती है, सेल होती है, राइट? अब इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसका कंट्रोल अब ये डोमेस्टिक जो औरतों के प्रॉब्लम्स हैं अपने मियाँओं के साथ, वो डोमेस्टिक इश्यू है। ये गवर्नमेंट लेवल का इश्यू है, जो ट्रैफिकिंग का इश्यू है। और औरतों के साथ जो इम्प्रिज़न्ड औरतें हैं, उसमें भी जो जेल्स में औरतें हैं, उनका भी ज़्यादातर अम, ओवर 60% औरतें जो जेल में हैं, वो अ, मर्डर केसेस में हैं। और उसमें भी अगर आप और इन्वेस्टिगेशन करें तो इट टर्न्स आउट दीज़ आर वुमेन हू हैव किल्ड मेन, and then obviously they've killed men who are trying to abuse them or sexually hurt them or all these sorts of cases. But इन औरतों का तो
हमारी सोसाइटी इज़ कंप्लीटली फेल्स देम। हमारी सोसाइटी में इनके इनकी इनकी सेफ्टी का तो कुछ, नोबडी थिंक्स ऑफ देयर सेफ्टी। और ये इस तरह की बहुत सारे छोटे-छोटे ग्रुप्स निकल आते हैं औरतों में जिनका ऑलमोस्ट फील्स लाइक देयर इज़ नो सॉल्यूशन। लीगल सॉल्यूशंस हैं बट वो अप्लाई नहीं हो रहे हैं। एंड आई जस्ट वंडर कि हम किस डायरेक्शन में जाएँगे, किस तरह से हमारा क्या रोल है इसमें कि हम किस डायरेक्शन में जाएँ दैट वी कैन हेल्प आवरसेल्व्स एंड हेल्प दीज़ वुमेन। But unfortunately you are pointing out very right things और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें हर तरह से हम बेबस महसूस करते हैं being a woman. It's very painful to see a lot of women who even can't raise their voices because they're bound to some such circumstances. But definitely what we can do, as far as we know, we can raise voice, we can do awareness campaigns, we can put pressure on government, we can file complaints on CM portal or Prime Minister portal, because all we need to do is put in pressure. We can't do anything else. Can't pursue legally. We can't find them out. We can't have such story. And if someone gets out of it, I think that is sadka jariya for the women who gets out of the system. She should speak for that, and she should be a activist after that. She should take the responsibility to take other women. It's very important. I've always seen when we talk about this domestic violence, when we talk about harassment, sexual harassment, whatever the crime is. So when I see a woman on decision making place, so I always feel so scared, and always feel bad to know कि एक खातून है और उसको पता है कि कितनी ज्यादती होती है, but when she reach on a decision position, why she don't advocate the women right? She becomes more harsh and वो फिर और very कंप्लिसेंट हो जाती है, बिल्कुल ही वो वो भूल जाती है उस पोज़ीशन को, भूल जाती हैं। हाँ। है और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन फिर अपनी उस पावर से एक्सप्रेस भी करती है, एंड शी डोंट वांट टू ब्रेक दैट साइकिल. So I think women needs to realize that when they reach, because it's very hard being in the media. I don't see, I may see two or three women who are on decision making process or decision making हुँ, places. Otherwise, the whole employer staff is women, and the employers हुँ। are so. राइट। Uh, but the I think, I don't know if you agree or not, but it's very hard to work with a female boss. It's very hard. No, I agree. I don't know, you should ask my employees, my teammates. I'm the boss, so I don't know. I'm sure they find me difficult, but yes, you're right. जितनी भी मेरी फीमेल बॉसेस रही हैं, बहुत मुश्किल उनके Female साथ boss काम or करना। in the female boss. So I think women needs to develop an empathetic approach, and women needs to mention that this is not normal being in circumstance under हुँ, maybe any cruelty, brutality. हुँ। Women एक्चुअली deserve this. आई फील होता ये है कि women feel कि they have more to prove, and they try to be, वही होता है ना, competition में आ जाती है with the men, which is like you said earlier, which shouldn't be the case, because we are not men. We don't have to be like men. हमारा बिल्कुल एक different, we are different from them completely. सिर्फ physically नहीं, but even uh, हमारी nature, हमारा style of uh, रनिंग थिंग्स, वो भी हमारा कंप्लीटली डिफरेंट है। तो वो चीज़ अगर आप रियलाइज़ नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है यू विल बिकम अ डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट बीइंग। यू वोंट बी, आप मर्द भी नहीं बन सकते और आप औरत भी नहीं रहेंगे फिर प्रीटी मच। तो ये मेरे ख़्याल में इश्यू हो जाता है जब आप लीडरशिप पोज़ीशन में ख़वातीन आती हैं तो। बट या, यू आर राइट कि हमको व्हाट वी नीड टू डू इज़ जस्ट कीप वर्किंग अपने एंड पे, व्हाटएवर वी कैन डू टू to change things. But but yeah, we have a lot of work to do. A lot of work There's to a do. lot of Yeah. advocacy, a lot of policy making, a lot of implementation of the policies we make. Hmm. And I see a lot of policy. Uh, there's still a lot of work in lawmaking and policy and all of that. Lekin policies बनती भी हैं तो where we're lacking is implementing them, because we don't have वो mindset का जो change है ना, वो नहीं आ रहा हमारा. And that's where the problem lies कि even सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, even पढ़ी लिखी औरतें भी हमारी
they're not ready to change. They're not ready to accept that women have to get out of this the situation that we're in, and they put their own children, their own daughters in these horrible situations जहाँ पे honor killings हैं, जहाँ पर they get beaten and they are in these situations. um all right, Doa, it was wonderful talking to you. If you have anything else to add, uh, then we can wrap this up. Anything at the end that you didn't get to share? I really want to thank you for the wonderful session. It was so nice being with you. You had some really valid questions, and finally, somebody was talking like from the core of the problem. So it was amazing to be here. And I would be like always available if I could be of any help regarding women issues, women's security, women's safety. That's my interest area and also my expertise. I just want to tell all the women that if they're coming to Lahore, Islamabad, and Karachi from any periphery or any area, from any village, please make sure you don't change your social class. Because when you enter in any metropolitan city, you feel different challenges, and then you want to gel in the society and you start using drugs, and maybe sometimes you think that being seen liberal will make you feel a little more comfortable in the city. It's not like that. Please carry your own social class, so you will feel like really safe. And I would love to ask all the parents, and I would love to beg to all the parents that if you're sending your daughters to the metropolitan cities, make sure that you don't compromise. If they are sending you like 20,000 rupees per month for your medicines, and you compromise on their security and safety, and you are comfortable with whatever they're doing. If they're doing modeling, anything, every field is like really safe if you make it safe. Because Pakistan is not overall safe for the women. So you need to create your own mechanism, your own security policy, your own safety boundary. For this, you need to compromise a lot, a lot. You don't need to play your gender card. You should be much like aware that your skills should play a vital role while making your career, while making your name. Your gender should not, because when you compromise on your gender, you will always be around the red flag, and that will even take your life. That's So that's all. somebody here is saying, Jimmy Jack is saying कि very practical last comments, and I agree. This is actually very very important. That parents, ज़ाहिर है parents को ज़रूरत होती है, and that's why they send their kids out to work. लेकिन 90 more than 90% of the time, daughters are not expected to. I shouldn't say told, but just unspoken सा rule होता है कि they're going to use their gender, and it's going to, or that's what makes it unsafe. Because वही बात हो जाती है कि automatically, and then उस पे वो implication आ जाती है कि उसकी तो वो लड़की थी इसलिए हो गया, but because we're making it about their gender, we're making it about her being a girl and her being uh, वो बेचारी लड़की, we put it on our girls. So a point that I actually never thought about it that way. So thank you for saying that. Thank you for bringing that up. And it was an honor talking to you. It was such a pleasure. And definitely we'll stay in touch. And definitely we will let's collaborate on something, and we'll have you back on here too to talk about other things. Yeah. Yeah, and you're in Lahore, so we can even do something, something, Exactly. yeah, face to face too. I have a lot of things with me. I have a lot of Yeah. dreams to do. I was just looking for a cruel, calm, polite boss. I hate to say it. What is that? I don't know. You should talk to. I ask Maro how polite I am. I don't know. I've talked to a few people before you decide to work with me. But yeah, we would love to definitely work with you. And thank you for everybody who's watching. And we'll talk to you soon. All right. Allah Hafiz.